Hello everyone, I'm Vikrant and I'm here back with you guys. And today in this video, we are going to discuss a chapter for class 10 CBSE. And this chapter I have taken from First Flight book. Okay, so I request all of you to please open up your book, First Flight. Okay, and the chapter we are taking today is chapter number 2. Okay, and chapter number 2, it's an important chapter. Fine, it's a very important chapter कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा important है. आपको ध्यान रखना है कि आप इस चैप्टर को पूरा लाइन टू लाइन रीड कर लें at least 2 to 3 times if you guys really wanna just nail it. Okay, if you wanna say after coming from exam that I nailed it, so in that case you need to read this chapter. Okay, because it has a lot of good things in it and you will get to know some of the better things about Nelson Mandela. Fine, so let's discuss about this chapter today, that class 10th CBSE chapter number 2 Nelson Mandela. Actually it's an autobiography we are given here. जो हमें यहाँ पे चैप्टर में मिला है वो एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि किसने लिखी है? नेल्सन मंडेला ने खुद ने अपनी लाइफ के बारे में लिखी थी. फाइन, एंड नेल्सन रोली हला हला मंडेला was his full name. Okay, and he was known by only the single name, that was Nelson Mandela. Fine, so you need to remember this name also. After that, there are a few characters he talked about in his autobiography. That was Zinani, उनकी जो बेटी थी, okay, his daughter, and then ANC, African National Congress Party. It's a political party he joined or he created. You can say 30 years in jail. He spent 30 years in jail. How did that happen? I'll let you know. Oppressor and oppressed, these words are damn important in this chapter. Okay, even the questions can be made out of these words. So let's discuss the summary about this chapter, I think. Okay, so let's start. How does it start? First of all, what is it? It's an autobiography. Fine, it is an autobiography. Autobiography क्या होती है? दो तरीके की होती है, एक biography and autobiography. So it's an autobiography, which means Nelson Mandela himself wrote it. और जो बायोग्राफी होती है वो होती है कि कोई इंसान किसी और के बारे में जब लिखता है. सो जस्ट लाइक दैट, आप लोगों ने कुछ मूवीज देखी होगी, भाग मिल्खा भाग एंड लाइक सचिन तेंदुलकर वाली, धोनी वाली. सो ऑल दोज मूवीज वर लाइक बायोग्राफी. वो बायोग्राफी थी, किसी और ने उनके बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने खुद ने बताया था एक बुक लिख करके, और उस बुक में से ही एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट जो है हमें वहाँ पे दिया गया है इस चैप्टर में. फाइन, सो देखिए इसके अंदर क्या होता है. इसके अंदर जो नेल्सन मंडेला है वो बताते हैं कि लाइक इट was the bright and a very good day of 10th May. Fine, 10th May 1994, 10 मई 1994 का जो दिन था, उस दिन उन्होंने क्या किया था कि वहाँ पे जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने वाली थी. फाइन, फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसको कि एक बहुत ही फेयरली तरीके से और एक बहुत ही ट्रूली तरीके से उसको इलेक्ट किया गया था. फाइन, और पहली बार जो अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका था, वहाँ पर पहली बार इतने सालों से चल रहा अराउंड 300 ईयर्स जो था वाइट सुप्रीमेसी, वाइट जो लोग थे, गोरे लोग जो थे, उन्होंने वहाँ पे लोगों को परेशान किया. फाइन, उन्हीं का सिक्का चला वहाँ पर, यू कैन से. सो दैट इज़ हाउ कि जो गोरे लोग थे सारे, उन सब ने क्या किया, वो बहुत ही 300 सालों से सबको परेशान कर रहे थे. एंड देन इन अराउंड 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे डिफरेंसेस को क्लियर कर लिया अपने, और उसके बाद उन्होंने डिफरेंसेस को हटा करके खुद के गोरे लोगों के, और उन्होंने एक पार्टी खुद की बनाई जिसमें कि वो काले लोगों को अलग रखते थे और उनको परेशान करते थे, रेशियल डिफरेंसेस. फाइन, सो एंड साउथ अफ्रीका इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट थिंग. एंड देन जो नेल्सन मंडेला हैं वो बताते हैं इस चैप्टर के अंदर हमें कि लाइक व्हेन आई वाज अ किड, when I was just born, I didn't know that I'm not having my freedom at all. He says that when I was born, I thought that I'm totally free. I have nothing to worry about. Okay, there is no restrictions on me. But as a kid, as he grew up, he had no restriction. Why? Because he could go to the park, he could go to the water streams, he could go to some fields. Okay, he could sit on a bullback and he could travel from one place to another, and he was free to do all he wanted to do. Fine, even he could play in his town also. So all the things were totally free of cost, and nothing was any kind of restriction was not there. Okay, so that's what he thought. That's what he says, that I never thought that I'm not having my freedom at all. Okay, and I'm living under someone's rule. So he says कि ऐसा कभी मुझे फील नहीं हुआ था. लेकिन जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब मैं एक बॉय बना, तो उस समय पे मुझे एक फ्रीडम चाहिए थी. वो किस चीज़ की थी? कि सिर्फ
मेरे फादर जो है वो मुझे, जैसे कि आप लोगों को चाहिए होती है कि भाई मेरे फादर जो है मुझे बाहर जाने के लिए अलाउड कर दें, मैं रात में घर लेट आऊँ तो मुझे अलाउड कर दें, और इसी तरह मेरे मेरे दोस्तों के साथ घूम सकूँ, इसी तरीके की छोटी मोटी चीज़ें। वो कहते हैं ये भी ठीक था, लेकिन उसके कुछ समय बाद जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता पड़ा कि यार मेरी तो बचपन से ही स्वतंत्रता नहीं थी, जो फ्रीडम थी, आई नेवर हैड दिस फ्रीडम एट ऑल, बिकॉज व्हेन आई वाज नॉट इवन बॉर्न, वो कहते हैं कि जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था उससे पहले ही जो गोरे लोग थे उन्होंने क्या कर रखा था, हमें परेशान कर रखा था, ठीक है, और हमें कोई भी स्वतंत्रता नहीं थी, हमें कोई फ्रीडम नहीं थी, कोई भी काम अपने मन से कर सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट नेल्सन मंडेला सेज कि मैंने क्या किया, मैं जब बॉर्न हुआ था उससे पहले की बात है कि जो अंग्रेज थे वो हमें परेशान, मतलब जो गोरे लोग थे वो लोग हमें परेशान कर रहे थे, एंड दैट इज वाई व्हेन आई वाज बॉर्न आई थॉट कि यार मैं तो फ्री हूं, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता पड़ा कि नहीं, मैं फ्री नहीं हूं, और अब मुझे क्या करना है, फ्रीडम चाहिए। एंड दैट्स व्हेन हिज स्ट्रगल स्टार्टेड। उनका स्ट्रगल तब स्टार्ट हुआ, उन्होंने लोगों को ओपोज करना चालू किया, गोरे लोगों को, एंड देन ही इवन स्टेड अराउंड 30 ईयर्स इन जेल। कितने? 30 सालों तक उन्होंने जेल में भी बिताए। फाइन। और वहां पे रहने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी, वहां पे रह करके वो एक बहुत ही बोल्ड इंसान बने, एक इंसान जो बहुत ही फैमिली लविंग था, एक इंसान जिसको अपनी फैमिली से प्यार था, वो घर में रहना पसंद करता था अपने फैमिली, अपने बच्चों के साथ। उनको एक क्या बना दिया, एक संत बना दिया, एक बागी बना दिया, यू नो। सो दैट इज कि उनको एक डाकू बना दिया, यू कैन से, कि अब उनको कोई मतलब नहीं था फैमिली से, एंड ही जस्ट वांटेड द फ्रीडम फॉर हिमसेल्फ एंड हिज पीपल ऑल्सो। वो कहते हैं कि जब तक मेरी बात थी मुझे लगता था लाइक मेरी बात के लिए उन्होंने कहा कि चलो तुम्हें फ्रीडम दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि अगर मेरे एक भी इंसान के ऊपर अगर बेड़ियां हैं या फिर अगर वो फ्री नहीं है, इट मीन्स मैं भी फ्री नहीं हूं। फाइन। सो दैट इज व्हाट ही सेड कि मैं चाहता था कि हर इंसान फ्री हो जाए उस वाइट रूल से, वाइट सुप्रीमेसी से। फाइन। सो दैट इज व्हाट ही डिड, ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट देम। उनको जेल में रहना पड़ा, वहां पे उनको बहुत परेशान किया गया, बहुत ज्यादा उनको टॉर्चर किया गया, 3rd डिग्री 4th डिग्री वॉट एवर यू कैन से थिंक ऑफ। सो उनको सब कुछ परेशान किया गया। बट वो कहते हैं कि एक समय था जबकि अगर एक छोटी सी झलक भी अगर मुझे दिख जाती थी, किसकी, काइंडनेस की, ह्यूमैनिटी की, किसके अंदर, वहां पे रहने वाले उस चौकीदार के अंदर, तो भी मुझे उससे पॉजिटिविटी मिलती थी कि नो, आई कैन वर्क एंड आई कैन डेफिनेटली गो टू दैट सिचुएशन वेयर एवरीवन विल बी फ्री। ओके, सो दैट इज व्हाट ही सेज अबाउट हिज पास्ट। वो अपने पास्ट के बारे में ये कहते हैं। एंड देन जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है उसके अंदर होता है 10th में 1994, डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। जो हमारी 10th में है वो बहुत ही अच्छी हुई, और 10th में 1994 को साउथ अफ्रीका का जो फर्स्ट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको इनॉग्रेट किया गया। और इनॉग्रेट के समय पर नेल्सन मंडेला ने, उनकी कंट्री ने, साउथ अफ्रीका के सॉइल पर पहली बार 140 कंट्रीज को बुलाया गया बाहर से, all around the world, from all around the world, around 140 countries came. And he says that when I was looking at the people, the scenario, it was just like I was in a garden full of flowers, different flowers. It means like a lot of people came from a lot of different countries, and everybody was having their different wearing styles, fashion style, and everybody was having a different color tone, skin tone. And that is what Nelson Mandela says, that I was thinking, I was seeing a garland, okay, a garland or a bouquet which was full of different flowers. So that is what he says, that the scene was so mesmerizing, and I just felt nostalgic, and I was just overwhelmed with my feelings. एंड देन ही सेज कि वो बहुत ही अच्छा दिन था, यही सारी बातें। एंड फिर उसके बाद वो बताते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे किस ने उनको ओथ दी अपनी लॉयल्टी की, ठीक है, कौन कौन से जो थे वो लोग भी अब उनको लॉयल्टी की ओथ दे रहे थे, क्योंकि वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने वाले थे। क्या? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। सो दैट इज व्हाट वो कहते हैं कि वो लोग जो मुझे क्या करने वाले थे, अरेस्ट करने वाले थे, जो लोग मुझे बात नहीं करना चाहते थे, मुझे अरेस्ट करने के लिए मेरे पीछे दौड़ते थे, आज वही मेरे सामने खड़े होकर मुझे सैल्यूट कर रहे थे। सो दैट इज व्हाट ही सेज कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। फाइनली जो व्हाइट रूल था, एक जो पूरा सिर्फ व्हाइट लोगों का सपोर्ट था, वो खत्म होने वाला था। अब दोनों को इक्वालिटी मिलने वाली थी, समानता। दैट इज व्हाट ही वांटेड। ही नेवर वांटेड कि ब्लैक ज्यादा ऊपर हो जाए या व्हाइट ज्यादा नीचे हो जाए। नो, ही जस्ट वांटेड अ इक्वालिटी एंड इक्वालिटी। सो दैट इज व्हाट ही डिड। उस दिन वहां पर वो बताते हैं कि अब वहां पर गोरे लोग भी थे, काले लोग भी थे, सब कुछ इक्वल हो गया था। इवन जो नेशनल एंथम था गोरे लोगों का और काले लोगों का, वो दोनों ही नेशनल एंथम उस दिन इनॉग्रेशन के टाइम पे फ्लैग सेरेमनी में एक साथ गाए गए। वो कहते हैं कि हालांकि एक इंसान को दूसरे इंसान का नहीं पता था कि यार ये गोरे लोगों का क्या है, ब्लैक लोगों का क्या है, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे के एंथम को गाने की कोशिश कर रहे थे। वो कहते हैं कि कुछ समय बाद डेफिनेटली दोनों को ही बाय हार्ट याद हो जाएगा और दोनों ही एक दूसरे के एंथम को एक साथ
गाएंगे। एंड दैट इज व्हाट ही इज हैप्पी अबाउट। वो कहते हैं उस दिन वहां पे अकम्पनी करने के लिए मेरी जो डॉटर है जिनानी, वो भी मेरे साथ में थी। और उसके बाद में वो कहते हैं कि किस तरीके से जो प्रिटोरिया जो बिल्डिंग थी एक सैंडस्टोन, वो कितनी तरीके से कितनी सुंदर लग रही थी और बहुत ही अच्छा बात थी। और उन्होंने अराउंड 400 सीट्स में से 252 सीट्स करीबन वो जीते थे। एंड दैट इज ऑल हाउ ही क्रिएटेड दैट एटमोस्फियर। इस तरीके से उन्होंने उस एटमोस्फियर को बनाया। एंड इट वॉज वेरी ओवरवेलमिंग, वेरी हार्ट टेकिंग एंड लाइक अमेजिंग, सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक्सपियालिडोशियस, एनीथिंग यू कैन से। फाइन, सो दैट इज व्हाट ही सेज इन दिस चैप्टर। इस तरीके से वो बताते हैं कि कैसे जो व्हाइट सुप्रीमसी थी, इवन जो नेल्सन मंडेला थे वो कहते हैं मेरे खुद के 8 डेकेड्स बीत गए, मतलब कि 80 साल से भी ज्यादा उनकी एज हो गई, एंड देन ही बिकेम द प्रेसिडेंट। 80 सालों तक उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में व्हाइट सुप्रीमसी को झेला, ठीक है। एंड इन द एंड ऑफ 20th सेंचुरी फाइनली इट वाज ओवर। और वो कहते हैं कि उनका लास्ट में एक डिस्कशन होता है इस बात में चैप्टर में कि ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड होता क्या है। ऑपरेसर क्या होता है, देखिए सबसे पहले ऑपरेसर इज जिसको कि जो कि परेशान करता है। लाइक आपको कोई मार रहा है तो उस सामने मारने वाला क्या हो गया, ऑपरेसर हो गया। और ऑपरेस्ड, आप मार खा रहे हो तो आप क्या हो गए, ऑपरेस्ड हो गए। सो दैट इज व्हाट ही सेज कि ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों ही क्या हैं, हेटरेट में बंधे हुए हैं। वो गोरे लोग जो थे वो काले लोगों को क्यों मारते थे या क्यों परेशान करते थे, हेटरेट, उनके अंदर नफरत थी उनके लिए। एंड ही सेज आई डोंट नो विच व्हाट इट वाज, लाइक व्हाई इट वाज देयर, इट वॉज अ प्रेजुडाइज, बिना मतलब की हेट करते थे वो लोग। फाइन, सो दैट इज कि ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड दोनों ही बंदी हैं किस चीज के, दोनों ही किसी चीज के एक जेल में बंधे हुए हैं। कौन सी जेल में, हेटरेट, नफरत की जेल में। ये जो परेशान कर रहा है और ये जो परेशान हो रहा है, दोनों ही है। क्यों, जो परेशान कर रहा है वो तो नफरत में बंधा हुआ है, इसीलिए वो इसको परेशान कर रहा है, लेकिन ये बेचारा तो इसके चक्कर में बंधा हुआ है। समझ में आया, जो परेशान कर रहा है वो क्या है, उसके अंदर नफरत है, तो वो नफरत की जेल में बंधा हुआ है। लेकिन जो परेशान हो रहा है वो बेचारा जो परेशान कर रहा है उसके साथ बंधा हुआ है। सो दैट इज वाई बोथ द पीपल आर नॉट फ्री। ही सेज कि जो परेशान करने वाला होता है और जो होने वाला होता है, दोनों ही फ्री नहीं है। एक के अंदर नफरत से परेशान है, एक नफरत के अधीन है, और दूसरा सामने वाले के अधीन है। सो दिस इज हाउ दिस चैप्टर हैपन्स। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नेल्सन मंडेला ने कैसे एक न्यू डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी उसका स्टार्टिंग की, उसकी इनॉग्रेशन किया, और उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज को बुलाया। एंड ही फेल्ट वेरी प्राउड अबाउट इट एंड एवरीथिंग वाज फाइन ओवर देयर। एंड दिस इज हाउ नेशनल लाइक African National Congress Party came into the procession. Fine. Thank you so much. Enjoy this chapter and I hope that you guys will like it definitely. Okay. And you will get some idea about this chapter and if it helps you, अगर ये आपकी help करता है, then definitely you can share this chapter with your friends and like whoever is in 10th class right now, you can share this video to them. And if you like it, then please hit the like button and don't forget to subscribe for more videos like this and some more chapters which I'm going to upload next. Thank you so much. Enjoy this day. Bye bye. Take care.